Hello everyone. The question is a point charge QA equal to 100 microcoulomb is placed at point A, which is in 3D form 1, 0, 2 meter. Means a point charge which is QA equal to 100 microcoulomb, and this is located at point 1, 0, 2. The another point charge QB equal to 200 microcoulomb, okay, which is situated at the point B. The coordinate at point B, which will be equal to 4, 2, 2 meter. Find magnitude of electrostatic interaction force. Magnitude of electrostatic interaction force acting between them. Magnitude of electrostatic interaction force between them. And another questions, we have to find out the find FA. FA means force on A due to B. Force on A due to B, and FB means force on B due to A in vector form. Okay, so we have to need the magnitude of F force. Let us suppose we try to construct the figure for which QA. There are the 2 point charge. First point charge is A and second point charge is B. Let us suppose this is the first point charge, this is the QA, and this is the second point charge, this is the QB. Okay, and the location of A point charge and B point charge. This point charge is located at point 1, 0, 2. This point charge is located at point 1, 0, 2, and B point charge is located at the point 4, 2, 4, 2. Okay, the value of QA equal to plus 100 microcoulomb. Right here, value of QA equal to 100 microcoulomb. Similarly, value of QB equal to 200 microcoulomb. We have to need the magnitude of force. Means QA is this, QB is this. Then try to find the direction of electrostatic force, which is calculated for this force line joining between 2 point charge. Line joining between 2 point charge. Then direction of electrostatic force, which is the, because both point charge is the positive point charge, so that will be the away A point charge and away B point charge. So which is direction of electrostatic force, which is F of A, and the direction of electrostatic force on B point charge, which is FB. This is the FA and this is the FB. Okay, FA means the electrostatic force, or we can say the force on A due to B, because this point charge is the positive point charge, and FB is the electrostatic force on B due to A point charge. So this is the FA vector and this is the FB vector. The direction of FA, which is left hand side, direction of FA which will be left hand side, a direction of FB which will be equal to right hand side, implies that we can say we are trying to find FA magnitude and FB magnitude, because for first questions, magnitude of electrostatics interaction force between them means QA and QB, A point charge, B point charge. This is the distance. Try to find out the distance between that 2 point charge. So try to find the distance between 2 point charge. This point charge is located in 3D form 1, 0, 2, and another point charge is located from 4, 2. Okay, so try to find out the R. R is the distance between AB, which is this point charge. So R equals to root of, if 2 point charge is given, the point charge, let us suppose A point charge, coordinate of A point charge x1, y1, z1, and B point charge is the x2, y2, z2. Okay,
Then r is the distance between AB, which will be equals to x1 minus x2 whole squaring plus y1 minus y2 whole squaring plus z1 minus z2 whole squaring. Okay, so we have to find out the r the distance between the 2 point charge. Okay, so r is known, so try to find out the r equals to root of this one is the x1 y1 z1. Let us suppose this one is the x1, this one is the y1, this one is the z1. Similarly you can say this is the x2, y2 and z2. x1 minus x2, x1 is this is the one, x2 is 4, 1 minus 4, so 1 minus 4 is squaring plus y1 minus y2, y1 is 0 and y2 is 4, then 0 minus 4 whole squaring plus z1 is 2 and z2 is 2, implies that 2 minus 2 whole squaring, which will be equals to 1 minus 4, which will be equals to minus 3 whole squaring equals to 9 plus minus 4 whole squaring equals to 16, this will be 0, then that value which will be equal to 5, because root of 25 equals to 5. So distance between AB r equals to 5 meter. Okay, so we have to find the FA magnitude and FB magnitude. FA magnitude, not a vector, equals to FB magnitude. FB magnitude, because FA vector magnitude equals to FB modulus of FB, which will be equal to same. This value equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 QA into QB divided by R squaring QA, putting the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, because this is this system is put in the free space or vacuum or air, so we can say 1 upon value of 1 upon 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9. QA equals to is this है, QB equal to 200 microcoulomb है. So try to convert this QA equal to 100 microcoulomb into coulomb. So 1 microcoulomb equal to 10 raised to minus 6 coulomb, and QB equal to 200 microcoulomb. Then QB the microcoulomb will be converted into coulomb. Then 1 microcoulomb equal to 10 to the power minus 6 coulomb. Then QB equal to 200 into 10 raised to minus 6 coulomb. So we are rubbing this. Putting the value is this, implies that the FA vector magnitude equal to FB vector magnitude. This value equals to 9 into 10 raised to 9 into QA. QA is 100 microcoulomb converted into coulomb, so 100 into 10 raised to minus 6. Another QB 200 into 10 raised to minus 6 divided by R squaring. R equal to 5 whole squaring equal to 25. Then simplifying these two numbers this will be the this one is the 100 into 10 to the power minus 6 है, whole will be converted equal to 10 raised to minus 4 है. So implies that we can say 9 into 10 raised to 9 into this one is the 10 raised to minus 4 है, because this is the 10 square, this is the 10 raised to minus 6, power will be same, then sorry base will be same, then power will be added, then 2 minus 6 equal to minus 4, this value is the 10 raised to minus 4. Here 200 into 10 raised to minus 6 implies that 2 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to 2, which will be equal to 10 raised to minus 4. Okay, adding these two numbers 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4, which will be equal to 10 raised to minus 8 divided by, here this is the 25, then this will be 25, 10 raised to 9 10 raised to 8, which will be equal to 10 raised to 1, then that value equals to 9 to the 18 into 10 raised to 1, which will be equals to 10 divided by 25. Then divided number at this point implies that we can say this one is the dividing the number of 5,
5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 रिमाइंडर इज द 3, तो 5 6 द 30, 5 6 द 30. So 36 divided by 5, 36 divided by 5, this one is the 5 7 जा 35 point, और 5 2 जा 10, because this is the 36, 5 7 जा 35, 36 minus 35 equal to 1, then point, applying the point, then this one is the 10, then 5 2 ja 10. So this one is the 7.2 Newton, which will be equals to Fa magnitude equals to Fb magnitude. Fa magnitude equal to Fb magnitude. Okay. Then let us move on the second question. The second question is this: Fa vector. Fa vector. Second question is this. Then Fa vector equals to find out also find the Fb vector. Okay. So rubbing this point, noted this. तो हम लोग निकाल रहे हैं इस पे, यहाँ क्यू ए वेक्टर है, ये क्यू बी आपका, ये क्या है, क्यू ए चार्ज है, ये क्यू बी चार्ज है. आर डिस्टेंस निकाला, 2 पॉइंट हमें मालूम है इन 3D फॉर्म में, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. आर निकला है, यहाँ पे आर कितना निकला था आपका, 5 निकला था. हम लोग जानते हैं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो आपका कोलम्बिक फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर. क्यू ए मालूम, क्यू बी मालूम, ये हमारा माइक्रो कूलाम है, हम लोग कूलाम में कन्वर्ट करेंगे. आर मीटर में कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू 9×10⁻² आपकी 9 होती है. वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे. 7.2 हमारा क्या हो गया, आपका न्यूटन हो गया. अब हम लोग आगे देखते हैं. अब हमें निकालना क्या है, एफ ए निकालना है. एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर निकालना है. अब हमें इन वेक्टर फॉर्म में निकालना है, मतलब हम लोग एफ ए वेक्टर निकालना है और हमें एफ बी वेक्टर निकालना है. तो देखिए एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं. देखो इस पर कोई भी वेक्टर हमें निकालना है, क्या करना है, कोई वेक्टर हमें निकालना है, तो हम लोग निकाल ले कैसे हैं. देखो इस पर हमें वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखो इस पर हम लोग कैसे इस पर राइट करते हैं वेक्टर निकालने के लिए. तो वेक्टर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एफ ए वेक्टर, हमने आपको पॉइंट बताया था, याद करिए. F12 Coulomb's law in vector form, which will be equals to K into Q1 Q2 divided by R1 minus R2 vector power 3 into R1 vector minus R2 vector. This one is the force on 1 due to 2. मतलब कि 2 हमारे पॉइंट चार्ज थे, कुछ इस तरह से हम लोग फिगर बना सकते हैं. हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज थे. दिस इज द Q1 पॉइंट चार्ज, अनदर दिस इज द Q2 पॉइंट चार्ज. सो दिस इज द R1 पोजिशन वेक्टर and this is the R2 position vector. This is the 1, this is the 2 system. So force on 1 due to 2, which is this force on 1 due to 2. This one is the force on 2 due to 1. Force on 2 due to 1. इसको राइट कर लेते हैं. जो फोर्स हमारा जो निकला है वो कितना निकला है, 7.2 क्या है, न्यूटन है. फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच विल बी इक्वल टू 7.2 न्यूटन है. So force on 1 due to 2 which will be equals to this. Okay. So look here is पे that 2 आपका point charge. So force on 1 due to 2 which will be equals to putting all this value putting all this value, then R1 vector minus R2 vector, R1 vector minus R2 vector, because we read already Coulomb's law in vector form, which will be force on 1 due to 2 equal to that point. This is the position vector of A point, the position vector of 1 which will be R1, position vector of 2 which will be R2, implies that here write that point. This is the F12. If this is the A point, this is the B point, implies that then similar point will be read H. This is the 1 and this is the 2. Okay, so FA, or we can say F of 1 equal to that number 1/4πε0. This is the K. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ K is
9 into 10 raised to 9, 9 to 10 raised to 9 into QA. QA is given 100 into 10 raised to minus 6. Also QB is given which is value 200 into 10 raised to minus 6 divided by this is the R, distance between that 2 point charge. This is the R1, this is the R2, then mod of R1 minus R2, which is this. Look here, this is the mod of R1 minus R2. R1 minus R2, which will be equal to R2 minus R1 mod. Let us suppose this is the R vector mod, or we can say this is the R. Okay, but R1 vector minus R2 vector is not equal to R2 vector minus R1 vector. बट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. मतलब कि इसमें क्या होती है, इसमें जो बीच की डिस्टेंसेस जो होती है वो क्या होती है, हमारी सेम होती है. इनकी बीच की डिस्टेंसेस हमारी क्या होती है, बोलो सेम होती है. आप चाहे मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से निकालो या मॉड ऑफ R2 माइनस R1 से निकालो, इनकी बीच की डिस्टेंसेस हमारी क्या होगी, बोलो इक्वल होगी. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे अब हम लोग पॉइंट इस पर निकालते हैं, देख लेते हैं इस पर सारा हम लोग निकाल के इस पर डिवाइड बाई. बीच की डिस्टेंस कितना निकला था, हम लोगों ने निकाला था R कितना निकला था, हमारे पास 5 था. तो यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर कितना होगा, हमारा 3 होगा. अब देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. R1 क्या था, बोलो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था. R2 क्या था, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था. R1 क्या था, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था. B क्या था, R2 हमारा सेकेंड पॉइंट पोजीशन वेक्टर था. R1 कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं. R1 इक्वल टू 1 0 2 लिखा है, तो इसमें एक्स वाई जेड है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग लेंथ जाता है, ये वाई एक्सेस के लॉन्ग, ये जेड एक्सेस के लॉन्ग. इस पॉइंट में वाई एक्सेस के लॉन्ग कोई भी हमारा मूवमेंट नहीं हुआ है. इसका मतलब लिखेंगे हम लोग आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप. ये R1 वेक्टर हो गया. यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं R2 वेक्टर. R2 वेक्टर कितना है, ये कितना है, 4 आई कैप है. सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 4 जे कैप है प्लस 2 कितना हमारे पास के कैप है. ये हमारे पास क्या है, R2 वेक्टर है. अब ये हमारे पास क्या है, बोलो आपका R1 वेक्टर है. ठीक है, राइट करते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. एक काम करो, 1 में 4 घटेगा. R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ आई वाले घटेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जे वाले घटेंगे, कोफिशिएंट ऑफ के वाले घटेंगे. तो आई कैप माइनस 4 आई कैप इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 आई कैप होगा. कितना होगा, माइनस 3 आपका आई कैप होगा. 0 जे कैप और कितना 4 जे कैप है, तो 0 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 4 जे कैप होगा. माइनस 4 क्या होगा, हमारा जे कैप होगा. आगे 2 के कैप है, ये कितना 2 के कैप है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी. कितना होगा, आपका 0 होगा. तो इसका मतलब हमारा निकल के आया माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप है. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. क्या करें, सिंप्लीफाई करें. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देख लेते हैं हम लोग. अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जो पॉइंट निकाला था ना, वो हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, और वो किसमें था, बोलो इतना लिखा था, इतना लिखा था, इतना लिखा था. यहाँ पे हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया था. मतलब इस यदि 5 को इसके साथ में अरेंज कर दें तो वही हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग राइट कर सकते हैं. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप दोबारा फिर इसमें करना शुरू कर दो. ठीक है, उसमें बहुत टाइम आपका ले जाएगा. तो ये वैल्यू कितना निकला था, 7.2 हमारा न्यूटन निकला था. तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं, बोलो 7.2 हम लोग रखते हैं, बस 7.2 इसमें रखिए. तो इसका मतलब इसमें वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, इक्वल टू 7.2 इंटू और कितना होगा, माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप डिवाइड बाई कितना हमारा 5 है. ये क्या है, फोर्स ऑन ए वेक्टर है, फोर्स ऑन ए पॉइंट ड्यू टू बी आपका पॉइंट है, और वी कैन से फोर्स ऑन क्यू ए चार्ज है ड्यू टू क्यू बी चार्ज है. ओके, तो ये हमारा विद डायरेक्शन आपका ये क्या हो गया, इन वेक्टर फॉर्म आपका आ गया. ओके, अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, और ये पॉइंट हमने बताया था. इसमें मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, बोलो सेम है, लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या है, अपोजिट है. ये डायरेक्शन इस साइड में, डायरेक्शन इस साइड में. इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1.
ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विच विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हमेशा याद रखना ये दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। वही है कोलम्बिक जो फोर्स हैं वो क्या है बोलो, सेम मैग्नीट्यूड के हमेशा होते हैं और क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के आपके होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये हमने क्या बोला, एफ ए बोल दिया, और ये क्या है बोलो, एफ बी है। ये क्या है, एफ बी है, इक्वल टू माइनस है, एफ ए वेक्टर हमें आ गया, एफ बी वेक्टर निकालना है तो निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें एफ बी क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव का पूरा मल्टीप्लाई करेगा, जब निगेटिव करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया बोलो, हमारा एफ बी निकल के आया। तो एफ बी वेक्टर क्या होगा, 7.2 इंटू माइनस माइनस प्लस होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5 होगा, इतना क्या हो गया, न्यूटन हो गया। दिस इज द एफ बी हमारा हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, चार्ज कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली आपका एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारा जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, और वी कैन से स्मॉलेस्ट चार्ज कैन बी डिपेंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज कैन बी डिपेंड, स्मॉलेस्ट चार्ज कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्मॉल जो चार्ज है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, किसमें बोलो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है हमारा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। एक चार्ज आपका इस पर जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आपकी होती है चार्ज की 1.6 इंटू 10 कितना होता है, माइनस हमारा 19 आपका कूलाम होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, चार्ज इन मैग्नीट्यूड आपका ही होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमारा कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इन मैग्नीट्यूड फॉर्म की केवल हम लोग चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज कितना होता है, चार्ज हमारा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब कैसे प्रोटॉन पे क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। न्यूट्रॉन पे क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज आपका नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला हम लोग जो पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर इंटीग्रल मल्टीपल। जो चार्ज आपका होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में आपका लाई करता है। चार्ज हमेशा क्या होता है बोलो, इंटीग्रल मल्टीपल में आपका लाई करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं Q इक्वल टू कितना, ±n इंटू क्या होगा, E होगा। ठीक है, चार्ज विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इस पर जैसे हम लोग ऐसे बोले, चार्ज हम लोग जैसे एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगला चार्ज क्या हो सकता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अगला चार्ज क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला चार्ज क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला चार्ज क्या होगा हमारा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सारे हमारे क्या होंगे बोलो, चार्ज होंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे, चार्जेज होंगे। ठीक है, ऐसा आप ना लिख देना कि अगला इलेक्ट्रॉन जो हमारा, इसमें कुछ ऐसा चार्ज हो सकता है जैसे 5.4 इलेक्ट्रॉन, नहीं 5.4 आपका इलेक्ट्रॉन आपका नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो चार्जेज होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर मल्टीपल में आपके एग्जिस्ट करते हैं। क्या होते हैं,
चार्ज हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल में। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, अगला चार्ज कितना 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला चार्ज कितना बोलो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला चार्ज क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला चार्ज क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि 3.9 इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे 3.9 हमारा इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज होगा, नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे कि अगला चार्ज कितना है हमारा, एक चार्ज है -1 इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव में भी तो हो सकता है इस पर। ठीक है, माइनस क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, अगला क्या होगा -2 इलेक्ट्रॉन, अगला क्या होगा -3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरह से आपके चार्ज एग्जिस्ट करेंगे मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज आपके एग्जिस्ट करते हैं। किस में करते हैं, चार्ज विल बी एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, दैट चार्ज जो भी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं इस पर, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं ना, वो किस तरह देखो इस पर ट्रांसफर आपके होते हैं, वो हमारे इसी तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं होगा कि 4.9 इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि 4.3 इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज आपका ट्रांसफर हो। इसमें चार्ज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस हमारा n ही होता है। इसको देख लेते हैं, Q हमारा क्या है, चार्ज ऑन बॉडी है, Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी है। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्या है, चार्ज ऑन आपका इलेक्ट्रॉन है। N क्या है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना आपका इस पे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ये क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर में होगा, क्या होगा नेचुरल नंबर में आपका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो Q इक्वल टू होगा, चार्ज ऑन जो बॉडी है वो इक्वल टू प्लस माइनस एनी टाइप से एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, प्लस माइनस एनी टाइप से एग्जिस्ट करता है। अरे आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 3 इलेक्ट्रॉन हुए, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में ही तो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होते हैं। तो बोलते हैं इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हुए, कितना अमाउंट ऑफ अ चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी से हम लोग निकालते हैं। वहाँ पे क्या अमाउंट ऑफ अ चार्ज हमारा क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यदि देखो किसी बॉडी में ध्यान देना, यदि किसी बॉडी में जैसे अभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं हमारा, यदि n मान लो n इक्वल टू कितना है, Q/E हमने लिख दिया। यदि किसी बॉडी में यदि हमारा n नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस बॉडी में वो चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस बॉडी में वो चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक अभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जैसे हम लोग ये बोले कि कैन बी एग्जिस्ट अ चार्ज ऑन अ बॉडी, can be exist a charge on body, can be exist a charge on body which is, जो चार्ज में जो गिवन है इक्वल टू प्लस 8 × 10⁻18 कूलम। इसको हम निकालते हैं, क्या किसी बॉडी में ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब Q का मतलब क्या है बोलो, ये कैपिटल Q है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या किसी बॉडी में ये चार्ज हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो Q इक्वल टू क्या है, N से निकालते हैं। E क्या है, E की वैल्यू मालूम है ना, 1.6 × 10⁻19 हमारा कूलम होता है। N निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि Q बॉडी में चार्ज दिया हुआ है, कोई बॉडी उसमें चार्ज आपका इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है उस बॉडी में क्या ये चार्ज आपका एग्जिस्ट करेगा। n यदि हमारा नेचुरल नंबर होगा तो एग्जिस्ट करेगा, n यदि हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसे इस पे लेते हैं, हम लोग Q इक्वल टू क्या जानते हैं, हम लोग n ही जानते हैं। n इक्वल टू कितना होगा, Q बाई हमारा n होगा। ठीक है, सॉरी Q बाई क्या होगा, E होगा। E की वैल्यू पहले से मालूम है, अब हम लोग n की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। n इक्वल टू Q कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻, हमारा क्या है 18 है, डिवाइड बाई, क्योंकि कूलम है, डिवाइड बाई कितना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻ आपका 19 आपका होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें लगता है शायद ये आपका -18 है,
देख लेते हैं, माइनस कितना आपका 18 है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे क्योंकि हो वैसे भी जाएगा आई थिंक इस पर, ठीक है, थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है पढ़े, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको हो जाके अभी देख ले रहे हैं। देखो कोई भी हम लोग चार्ज ले लें, बस बोल देंगे नहीं एन आपका नेचुरल नंबर में होगा तो बोल देंगे उस बॉडी में वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लें, देख लो ये -19 है, ये -18 है, इसलिए लिया है ताकि कैंसिल हो जाए। तो -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 हमारा 19 होगा, तो इसको लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻18 है और प्लस आपका 19 होगा, तो ये कितना होगा 10 हमारा 1 होगा। तो इसका मतलब 8 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 कितना है हमारा 1 है। ये पॉइंट हटाएंगे 0 होगा, 16 पचाई क्या होगा 80 होगा, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू हमारा 50 हो गया। तो इसका मतलब n कितने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, n इक्वल टू 50 होगा। 50 हमारा क्या होगा बोलो, नेचुरल नंबर होगा। हमने बताया था यदि n नेचुरल नंबर है तो क्या होंगे, हमारा उस बॉडी में वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना। यहाँ पे 18 भी होगा ना तब भी एग्जिस्ट करेगा। ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, नंबर बहुत बड़ा आएगा, इन दोनों को ऐड करके वो नंबर हमारा राइट करेगा। 18 + 19 इक्वल टू काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा यदि यहाँ पे 1.7 होता तो क्या एग्जिस्ट करता, ना एग्जिस्ट करता, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 1.7 आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब वो उस बॉडी में आपका चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ चार्जेज। देखो लिमिटेशन ऑफ जो चार्जेज आपका होगा वो कैसे क्या हमारा एग्जिस्ट करेगा। जैसे फर्स्ट आपका है, जो चार्ज हमेशा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपके, पॉइंट चार्ज आपके होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ हम लोग ऐसे जैसे हम लोग फोर्स लेते हैं ना, लिमिटेशन ऑफ अ चार्जेज मतलब क्या, लिमिटेशन ऑफ अ कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना उसी के लिए है। लिमिटेशन ऑफ अ चार्जेज का मतलब क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, चार्जेज ऑफ क्या बोलो, कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ में कब कब अप्लाई कर रहा था, कब कब अप्लाई नहीं कर रहा था, उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कब कब अप्लाई कर रहा था, कब कब अप्लाई नहीं कर रहा था। कूलम्ब की स्पेलिंग क्या होती है, COULOMB, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम लोग ऐसे देखते हैं, यदि हमारे पास इस तरह से एक ये स्फीयर है, एक ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें चार्ज जैसे ये प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, चार्ज हमारा ये प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें क्या है, चार्ज आपका प्लस मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स तो लगेगा, लेकिन इसमें क्या कूलम्बिक क्या फोर्स हमारा अप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कूलम्बिक फोर्स अप्लाई होने के लिए कब एग्जिस्ट करेगा, आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं है, इसकी एक रेडियस होगी ना, रेडियस होगी ना। अच्छा देखो ये पॉइंट चार्ज हम लोग बना सकते हैं, अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन इसके पास से कर रहे हैं। यदि हम लोग ये बोले बहुत दूर से हम लोग ऑब्जर्वेशन इस दोनों चार्जेस का करें तो ये चार्जेस हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज हो जाएंगे, तब हम लोग फोर्स वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे बैठा है, इनफाइनाइट पे बैठा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हमारा क्या होगा, पॉइंट चार्ज हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें पॉइंट चार्जेस के लिए ही केवल क्या करते हैं, कूलम्बिक आपका कूलम्बिक फोर्स आपका अप्लाई होगा। जो कूलम्बिक जो फोर्स होगा अप्लाई ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बोलो, कूलम्बिक हम लोग फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हाँ एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स निकालेंगे इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड पॉइंट, जो हमारा F जो हम लोग अप्लाई करते हैं, F फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं,
दोनों चार्ज हमारे क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। बोथ चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट। दोनों चार्ज हमारे क्या होना चाहिए, आपके रेस्ट पे होना चाहिए। बोथ चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक कोई चार्ज है, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0। अब हम लोग फोर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कब नहीं कर पाएंगे, ये तो हम लोग बोले थर्ड पॉइंट में एफ हम लोग अप्लाई कब नहीं कर पाएंगे, एफ हम लोग तब अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो हमारे दोनों चार्ज क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। व्हेन बोथ चार्जेज आर मूविंग, यदि हमारे दोनों चार्जेज मूव कर रहे होंगे ना, तब हम लोग कोलम्बिक फोर्स को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम आगे देखते हैं फोर्थ में, एफ हम लोग कब हम लोग अप्लाई हम लोग करेंगे, एफ फोर्स हम लोग जो कोलम्बिक फोर्स होगा कब हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्या हम लोग अब अप्लाई कर पाएंगे, वन मूव करे एंड अनदर क्या हो, बोलो एन अदर क्या हो, रेस्ट पे हो, अनदर आर इन रेस्ट है। एक मूव करे और अनदर क्या हो, बोलो रेस्ट पे हो। देखो एक मूव करे अनदर रेस्ट पे हो, तब हम लोग कोलम्बिक फोर्स को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे क्या हो गए, लिमिटेशन ऑफ चार्ज हो गए। 4 लिमिटेशन ऑफ आपके इस पे चार्ज ऑफ लिमिटेशन ऑफ कोलम्ब आपका इस पे ला आपके होते हैं कि कोलम्बिक फोर्स कब का अप्लाई कर पाएंगे, कब का अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एक हमारा ये लाइन चार्ज है, क्या है, एक लाइन चार्ज है। इसे पहला पॉइंट को थोड़ा बता देते हैं इस पर। एक हमारा क्या है, ये आपका लाइन चार्ज है, मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा है। एक हमारा ये क्या है, आपका पॉइंट चार्ज है। इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन चार्ज है ना, वैसे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लाइन चार्ज है ये इसको बहुत छोटे छोटे हम लोग पॉइंट चार्जेस में कन्वर्ट करें। अब हमारा ये एक तो पॉइंट चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, तो अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले इसको क्या करेंगे, एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग काटेंगे। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज बनाएंगे, बहुत सारे पॉइंट चार्ज बनेंगे। तो एक जो कोई पॉइंट चार्ज होगा, मानते हैं ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। एक ये पॉइंट चार्ज है, इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। एक ये पॉइंट चार्ज है, इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट चार्जेस को समेशन कर देंगे, जो कि इंटीग्रेशन से होगा। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे इस पर। अब हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे, तो उस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के लिए अब हम लोग कोलम्बिक फोर्स हम लोग अप्लाई करके तब हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा कहीं आंसर होगा, ठीक है। नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, टाइमिंग देखते हैं। जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। टाइम 50 मिनट्स का सोच रहे हैं वीडियो के लिए। 50 मिनट से ऊपर यदि वीडियो जो होगा तो हो सकता है ऑटोमेटिक कट हो जाए मोबाइल से वो वीडियो, इसलिए थोड़ा टाइम को भी देखना पड़ता है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फोर्स हम लोग निकालते हैं इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर। कोलम्बिक फोर्स है, एक पॉइंट चार्ज बोलो क्या है हमारे पास, Q1 है। दूसरा पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज हम लोग मान रहे हैं, दूसरा कितना है आपका Q2 है। इसके बीच की डिस्टेंस कितना है आपका R है, ठीक है। ये जैसे मान लो A आपका पॉइंट चार्ज है, ये B पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव आपका फोर्स होगा नहीं होगा। आप राइट करना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, रिपल्सिव आपका फोर्स होगा, ठीक है। मानते हैं ये हमारा क्या है, F1 है, ये हमारा क्या है बोलो, F2 है। अच्छा, तो इसमें कुछ क्वेश्चन लोग ले रहे हैं। लेट अस सपोज लेट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो उस ट्रायंगल में हम लोग फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर
the equilateral triangle. This is the A point, B point and C point. This is the equilateral triangle. Then charge on A point, which is, let us suppose this is the Q charge, another this is the Q charge, another this is the Q charge. All 3 point charge are the positive. All 3 point charge is the positive, and distance between distance between point charge is the A, because this is the equilateral triangle. Then find the force on A due to B, or we can say find the net force on A. Also find the net force on B, and also find the net force on C. We have to need the net force, not in vector form or in magnitude form, So force on A point charge, force on B point charge, force on C point charge. Then observe deeply. Force on A point charge, which will be equals to force on B point charge, which will be equal to force on C point charge. Magnitude of force on A point charge, force on A point charge equals to force on B point charge equal to force on आपका C point charge. Trying to calculate this force on A point charge. Let us suppose this is the Q, also this is the Q, and also this is the Q. Okay, this is the plus Q. So force on A point charge, which is the repulsive nature. Okay, let us suppose this is the F1. Force on A point charge due to B. Let us suppose this is the B, this is the A, and this is the C. Force on A point charge due to B point charge is the away, because this is the positive, this is the positive. Similarly, we can say force on A point charge due to C, which is this is the F1. Okay, or we can say F1 equals to F2. Let us suppose this is the F2. Observe that deeply. Means force on A point charge, this is the F1, this is the F2. Trying to calculate F1 vector magnitude and F2 vector magnitude. F1 vector magnitude equal to K into Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. ये क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है तो A हो जाएगा, A स्क्वायर होगा. आगे निकालते हैं, F2 निकालते हैं. F2 C की वजह से आ रहा है तो कितना होगा, K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा बोलो, A होगा, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है ना. तो दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे क्या होंगे बोलो, सेम होंगे. F2 जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमारा इसके बराबर होगा. मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू C, that will be equal force, or we can say this is the F force, this is the F force. Okay, so this is the equilateral triangle, this angle is the 60 degree, angle is the 60 degree. Implies that we can say if force will be same, यदि फोर्स हमारे सेम हो, हमेशा याद रखना, यदि हमारे पास क्या है, आपका फोर्स आपका सेम है, ठीक है, ये फोर्स सेम है, तो इसमें जो आपका जो रिजल्टेंट निकलता है, जैसे ये हमारा कितना है, आपका 2 थीटा है, तो ये थीटा होगा और ये क्या होगा, थीटा होगा. जो रिजल्टेंट निकलता है ना, इसको बाइसेक्ट करता हुआ आपका रिजल्टेंट निकलता है. ये कब होता है, जब हमारे इनके फोर्स के मैग्नीट्यूड हमारे क्या हो, सेम हो. जैसे 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, इसके मिड से निकलेगा. जैसे ये हमारा 90 होगा, पूरा 90 है, ये 45, ये 45. जैसे ये 36 से टोटल, तो ये 18, ये 18. ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसमें जो नेट फोर्स होगा ना, वो कैसे निकलेगा. देखो इसमें क्या करें, कुछ इस तरह से हम लोग ज्योमेट्री इस पे अप्लाई करें. ये नॉर्मल रखा हुआ है, जैसे इस तरह से रखे हम लोग, ये A,0 पे है, ये कितना बोलो -A,0, तो ये कितना है 0, जो भी है 0, y एक्सिस पे उसके अकॉर्डिंग आपका अरेंज करेगा, मैनेज कर लेगा. लेकिन ये लेंथ हमारी क्या है, सेम है, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है. ये 60 है तो ये F है, तो इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, और ये कितना होगा बोलो हमारा, ये भी हमारा क्या है, आपका 30 है. ठीक है, तो ये F है, ये एंगल 30 है, ये F है, ये एंगल आपका 30 है, तो F का cos 30 होगा. ये कितना हो जाएगा आपका, F का cos 30 होगा.
एफ कॉस 30 है। ये एफ है, इसको दोबारा फिर आपका कंपोनेंट ले जाएगा, एफ का कितना कॉस ऑफ आपका 30 है। ये एफ है, ये 30 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ का साइन 30 होगा। ये एफ है, ये एंगल आपका 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ का साइन 30 होगा। दोनों कैंसिल हो क्योंकि अपोजिट पे ये दोनों ऐड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्टेंट हमारा क्या करेगा बोलो, ऐड करेगा। तो ये वर्टिकली क्या है, ऊपर क्यों रिजल्टेंट है, क्या वर्टिकली ऊपर क्यों रहा है। तो मीन्स हम लोग जो नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं इक्वल टू कितना निकला, 2F इंटू क्या होगा, कास ऑफ हमारा 30 डिग्री निकला। कितना हुआ, 2F इंटू कास ऑफ 30 निकला। F की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू कितना होगा, K इंटू क्यू स्क्वायर, कितना होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है हमारा ए है। कास 30 कितना होगा, √3 बाई हमारा 2 होगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा, √3 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये क्या निकला, एफ नेट फोर्स निकला, कहाँ पे, ए पे, ठीक है। के की वैल्यू पुट कर लो कि 1/4πε0 या 9 × 10⁹ यदि वो एयर में है या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। तो सेम काम यहाँ पे होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्ज विच विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। तो ये मानते हैं फोर्स ऑन क्या बोलो, बी ड्यू टू ए, सेम ये निकालते हैं, ये क्या होगा बोलो, फोर्स ऑन आपका इस पे बी ड्यू टू सी होगा, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। तो ये क्या होगा, इस आपका इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ना, तो वो क्या होगा, आपका नेट आपका फोर्स निकलेगा, क्या निकलेगा, आपका नेट फोर्स निकलेगा, ठीक है। ओके, नोट करिए इसको। तो यहाँ से क्या निकालोगे, किसी एक पे निकाला ना, सबकी वैल्यू सेम है तो हमारा वही आपका नेट फोर्स आएगा नहीं आएगा। और वैसे भी निकालना चाहो तो और भी निकाल सकते हैं। देखो ये हमारा फोर्स एफ मालूम है, ये एफ मालूम है, बेस का एंगल आपका 60 है। तो कोई भी दो हमारे यदि वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल आपका थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, √p² + q² + 2pq cos ऑफ आपका थीटा रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, ये f है, ये f है, बीच का एंगल कितना है, 60 है, तो क्या हो जाएगा, निकाल लो अच्छा इस पर। यहाँ पे यदि हम लोग f नेट हम लोग निकालते हैं, f नेट इक्वल टू √f² + 2f इंटू f इंटू कॉस ऑफ कितना 60, ठीक है। तो यहाँ पे f इंटू कितना होगा, कॉस ऑफ आपका 60 होगा, यही तो आएगा। कॉस 60 कितना होगा, 1/2 होगा, क्या होगा, 1/2 होगा। ये 1/2 यहाँ से कैंसिल होगा, f इंटू f² होगा, f² + f² इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू f² होगा। तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू हमारा f आएगा। f क्या होगा बोलो, f को लिखेंगे हम लोग इस पे k इंटू क्यू² डिवाइड बाई कितना होगा, a² होगा, वही तो लिखा है इस पे। दोनों फोर्सेस क्या है बोलो, इक्वल है। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, ये हमारा क्या है, सुपरसेट है, ये हमारा बहुत आपका यूज होता है। ये तो हमने इसको लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो रहा है, वर्टिकल केवल बन रहा है। उल्टा पुल्टा हो सकता है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आप थोड़ी ना ऐसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये एफ फोर्स है, एक ये एफ फोर्स है, बीच में एंगल 60 है, तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। और इन सब के लिए क्या होगा, हमारा इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा सेम होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम होगा। हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं इस पर, ऐसी बात नहीं है। यदि ये फिक्स करे पॉइंट तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं, डायरेक्शन आपकी क्या होगी। इसमें डायरेक्शन एफ नेट क्या है, ऊपर की ओर है, इसमें डायरेक्शन इस एंगल पे होगा। कैसे निकालेंगे, इसका एफ वेक्टर निकालना है, एफ वेक्टर ये निकालना है। तो ये क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी है, ये आ जाएगा, ये किधर है, -i है। तो एफ बी सी इंटू -i क्योंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे है। और ये किधर है बोलो, इसको हम लोग यदि ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग कंपोनेंट करते हैं, ये तो इस डायरेक्शन पे है, तो ये एफ बी का हम लोग कंपोनेंट करते हैं। ये कैसे कंपोनेंट होगा आपका, अभी और इसमें इफेक्ट जाएगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। ये एफ बी ए है, तो एफ बी ए का क्या होगा, ये कास होगा, ये एफ बी ए का क्या होगा, साइन होगा। तो इसमें हम लोग इसमें और ऐड करेंगे, एफ बी ए प्लस कितना होगा, एफ बी ए कॉस थीटा इंटू -i होगा, ये वर्टिकली डाउन है। तो एफ क्या होगा, बी ए इंटू -j होगा। तो वहाँ से अब हमारा इन वेक्टर फॉर्म होगा। सेम हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ये इधर होगा, ये हमारा
इधर होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसको इफेक्ट मारेगा, जैसे ये आपका 60 है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट इधर भी जाएगा, इसका इफेक्ट इधर भी जाएगा, तो ये प्लस ये इंटू प्लस आई कैप होगा, और ये तुम्हारा साइन वाला है तो इंटू माइनस जे कैप होगा, तो वो इन वेक्टर फॉर्म होगा। इन वेक्टर फॉर्म है तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायरिंग प्लस क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायरिंग प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायरिंग होगा, वो क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे कराएंगे।